हेलो, आवाज जा रही है? हेलो। यस सर। अच्छा, रुक जाओ, कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं ना, सभी को आ जाने दो। है ना, एक दो का फोन आया था अभी। आ जाने दो, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी डाई, पारा और फेरो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग लैंड लॉ, फाराडे लॉ, इस सब में इस सब के बारे में जाएंगे, ठीक है? कहाँ राजू, फटाफट आना चाहिए सभी को। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये शायद तुम लोग पढ़े होगे, जो भी हो, लेकिन इसका डिफिनेशन पहले हम बता दे रहे हैं। When the magnetic flux linked with a closed circuit changes an EMF induced in this circuit. When the magnetic flux is joined with a closed circuit, an EMF is induced in the circuit, so the current, resultant current is called induced current, and the phenomena is known as electromagnetic induction. When what do you mean by define electromagnetic induction? So in that case, we have write this definition, means when the magnetic flux linked with a closed circuit and EMF is induced in the circuit, so the resulting current is called induced current, and whole phenomena is known as electromagnetic induction. So, laws of electromagnetic induction. Laws of electromagnetic induction. First is the Faraday law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Second is the Lenz law. Lenz law describes the direction of induced EMF. So, first we have to discuss about Faraday law of electromagnetic induction. Magnitude of induced, it indicates the magnitude of induced EMF. Just a minute, wait. Faraday law of electromagnetic induction indicates the magnitude of induced EMF, but the second is the laws of electromagnetic induction consist of two laws. Faraday law of electromagnetic induction, first is Faraday law of electromagnetic induction, second is the Lenz law. Faraday law of electromagnetic induction express expression regarding magnitude of induced EMF, and Lenz law describes the direction of induced EMF. इस दोनों लॉ में, फैराडे लॉ और लेंज लॉ, दोनों में अभी तक क्या है जी, यहाँ पर समय नहीं दिख रहा, बच्चा आ नहीं रहा, क्यों? इलेक्ट्रो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, if a magnetic flux linked with a closed circuit, the induced EMF, here I have written, in the circuit, when magnetic flux this linked with a closed circuit, रुक जाओ, मुस्कान कुमारी आ रही है, हाँ, एंड EMF is induced in the circuit, यहाँ पर हम लिख रहे हैं the induced EMF, this induced EMF here last long as the change in flux. Second point, Faraday law ka, the induced EMF, magnitude of induced EMF E is directly proportional to the rate of change of flux
linkage. Flux linkage is denoted by d phi, phi, and rate of change of means it takes time t, delta t. So second steps of Faraday law of electromagnetic induction, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage, means d phi by dt, E proportional d phi by dt. E is the induced EMF, d phi by dt. D phi is the flux linkage, dt is the time. So E is equal to a constant and d phi by dt. So a constant is equal to 1. Here I have written E is equal to 1 into d phi by dt. Suppose if this flux passing through a coil, वो coil को याद रखो, solenoid का, if this flux passing through a coil of one turn, वहां हम n number of turn का बात बोलते थे, यहाँ if the flux passing through a coil of one turn, यहाँ हम सिंगल वन टर्न का बात बोल रहे हैं, वन टर्न चेंजेस फ्रॉम phi1 to phi2 in t सेकेंड. यहाँ टाइम हम लोग t ले रहे हैं ना, ये टाइम t ले रहे हैं. तो ये जो मेरा फ्लक्स था phi1, ये चेंज करके क्या हुआ phi2, कितना समय में हो गया t समय में. जब एक सिंगल टर्म ले रहा है तो कॉइल में उस समय फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम phi1 to phi2 in t सेकेंड. So change in flux that we have right, the change in flux linked with the coil. Final flux minus, रुक जाओ माउस नहीं चल रहा, final flux phi2 minus phi1. Change in flux with the coil is equal to phi2 minus phi1. So again, if rate of change of flux is equal to phi2 minus phi1 divided by rate of change of means time t. Yeah, time t. This is the equation 2. Now according to the statement of Faraday law, according to the statement of Faraday law, हम लोग लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ हम लोग अब क्या लिखेंगे, E प्रोपोर्शनल, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये पता आएगा phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई टी. अब हम लोग फिर क्या करेंगे, E इज इक्वल टू ए कांस्टेंट 1 ले रहे हैं, तो phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई टी, यहाँ कांस्टेंट 1 लिए, तो ये E इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई टी. ये कब हो रहा है, जब हमारा सिंगल टर्न्स, इफ कॉइल हैव सिंगल टर्न्स, वन टर्न्स, if coil have n number of turns, then flux passing through this n number of turn can be written as E is equal to, क्या करेंगे यहाँ n लिख दिए, n number of turns है, यहाँ सिंगल था इसीलिए 1 लिखे थे, n number of turns लिखेगा तो क्या रहेगा, तो क्या लिखेंगे phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई टी. तो यहाँ पर हम d बाई डी टी एन फाई कर दिए. दिस एन फाई देखो यहाँ लिख दिए, दिस एन फाई इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. दिस एन फाई इज कॉल्ड, ये एन फाई, दिस एन फाई इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई आर डी टी. ये R क्या है, रेसिस्टेंस है. फिर से बोल रहे हैं इसको, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू लॉ. फर्स्ट इज द Faraday law of electromagnetic induction which describes about magnitude of induced EMF, and second is the Lenz law. Lenz law states the direction of induced EMF. Direction of induced EMF described by the Lenz. So, in Faraday law, when the magnetic flux, when the magnetic flux is linked with
एक मिनट, क्रसर रुक जाओ। हाँ, when the magnetic flux, ये magnetic flux is linked with a closed circuit, the induced EMF, this induced EMF is induced in the circuit. So the induced EMF is as long as the change in magnetic flux. Second point क्या है? The magnitude of induced EMF, E capital E, induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of flux change, rate of change of flux linkage, sorry, rate of चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया? डी सॉरी फाई, फाई रेट ऑफ चेंज ऑफ ई, तो ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट into this d phi by dt, and we have selected a constant is equal to 1, means uh, in uh, while have the solenoid have only single turns of coil, so E is equal to 1 into d phi by dt। सपोज ये पार्ट बोल रहे हैं, जब हमारा टर्न्स कॉइल कितना है, n नंबर 1 टर्न है, देन फ्लक्स लिंकेज चेंजेस फ्रॉम phi 1 to phi 2। phi 1 is the initial flux and phi 2 be the flux changes from phi 1 to phi 2 at time t। So change in flux linked with the coil is equal to phi 2 minus this phi 1। चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, चेंज 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 मीन्स यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस लिंकेज लिंक फ्लक्स माइनस इनिशियल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या करेंगे, इसके साथ हम टी को डिवाइड करेंगे, तो फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई टी, इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ we can write this E proportional, ये proportional, this phi 2 minus phi 1 divided by t, और E is equal to, इसके जगह हम कांस्टेंट लेके आए, तो कांस्टेंट phi 2 minus phi 1 divided by t, और E is equal to, अब हम यहाँ सिंगल टर्म का जब बात बोल रहे हैं तो कॉइल ऑफ टर्म है सिंगल, तो 1 यहाँ आ जाएगा 1 into phi 2 minus phi 1 divided by t। If the flux having n number of turns, n number of turns in coil, so flux passing through n number of turns, we can write E is equal to, ये E is equal to, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट की जगह n, n आ जाएगा, n this phi 1 into phi 2 minus phi 1 divided by t, ये n into phi 2 minus phi 1 divided by t, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d by dt n phi, n phi, this n phi, yeah, n phi is the magnetic flux linkage, और induced EMF is equal to, याद रखना खाली, d phi by r dt। r क्या है, रेसिस्टेंस, r रेसिस्टेंस, I is equal to d phi by r dt, ये d phi by dt है यहाँ हमारा E प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट में देखो फैराडे लॉ में सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर तो क्रसर काम नहीं कर रहा, induced EMF I equal to d phi divided by r dt। Lenz law, Lenz law states the direction of induced EMF, वो क्या था, magnitude of induced EMF described by the Faraday law। Lenz law describes regarding the direction of induced EMF। Lenz law states, क्या बोल रहा है Lenz law, the direction of induced EMF, ये डायरेक्शन बता रहा है, वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it opposes the cause producing the change of flux, oppose the cause producing the change of flux, phi 2 minus phi 1, oppose कर, that is induced EMF is equal to, वहां मेरा क्या था, प्लस, यहाँ प्लस था, प्लस E d phi by dt, यहाँ क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, E is equal to minus d phi by dt।
ये देखो हम यहाँ लिख दिए हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट current due to induced EMF produces an opposing flux change. Opposing flux change. So that we have write here negative sign. E equal to minus d phi by dt. So, Lenz law states statement regarding the direction of induced EMF and in such way that it opposes the causes producing the change of flux, means E is equal to minus d phi by dt. Lenz law states that magnetic flux is equal to minus d phi by dt. Induced EMF. This induced EMF. Expression for first point is the expression for induced EMF. Next is the expression for इंड्यूस्ड ईएमएफ. दोनों ही केस में अभी हम बता रहे हैं. तो पहले हम लोग क्या लिए थे, एन नंबर ऑफ टर्न्स था. जब हमारा सिंगल टर्न आया था, सिंगल टर्न था, उस केस में क्या आ रहा था, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. फैराडे लॉ का केस में जब एन नंबर ऑफ टर्न्स था, फैराडे लॉ का केस में, तो ई इज इक्वल टू एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई टी. ये आ रहा था, एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे डी बाई डी टी एन फाई. यहाँ सेम चीज, यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा क्योंकि ये ओपोज कर रहा है. तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई, ये सपोज करो मेरा इक्वेशन 3. तो हियर एन, this capital N with the total number of turns in the coil. वहां भी हम लोग बोल रहे थे N with the total number of turns in coil. फैराडे लॉ में भी बोल रहे थे. And dphi by dt is the range of change of magnetic flux linked with the coil. Change of magnetic flux dphi, rate of change of divided by ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ये मेरा dphi डिवाइडेड बाय ये टाइम आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये टाइम. ये एन विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, dphi by dt is the range, is the rate of change of magnetic flux. Now if flux through the coil, we know that flux through the coil changes from phi 1 to phi 2 in t second. फैराडे लॉ में हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ देखो हमारा फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ 1 टर्न सेकेंड, देन इट चेंजेस फ्रॉम phi 1 to phi 2 in t सेकेंड. t सेकेंड में मेरा फ्लक्स चेंज किया था phi 1 to phi 2. यहाँ भी हम वही सेम लैंग्वेज को लिख रहे हैं, फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम phi 1 to phi 2 in t सेकेंड. So induced current I is equal to ये n डी फाई बाई डी टी. यहाँ मेरा आर आ जाएगा, यहाँ से देखो तो ये पार्ट है ना इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई डिवाइडेड बाई आर इंटू डी टी. तो यहाँ मेरा कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है. यहाँ हम लोग बोल रहे हैं n नंबर ऑफ टर्म्स है. इसमें देखो तो यहाँ के केस में तो n इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट ये I इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि अपोज कर रहा है, माइनस n, ये n नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ, n डिवाइडेड बाई ये r डिफाई बाई dt. ये पार्ट है इंड्यूस्ड करंट. ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो हम लोग इसको चूज करेंगे. n क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, r विद द रेजिस्टेंस, dphi with the flux, change in flux, and dphi dt is the time, rate of change of change in flux. हेलो सर. हाँ सर इंड्यूस्ड करंट का 2 फार्मूला बताया सर, यूज कौन करेंगे क्वेश्चन में? हाँ बोलो. एक में नेगेटिव सर, इंड्यूस्ड करंट का 2 फार्मूला लिखे हैं ना सर, एक नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है.
तो क्वेश्चन में कौन यूज करेंगे, बोलेगा इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए तो। हाँ, ये बात अभी सही बोला। इंड्यूस्ड करंट जो हमारा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव बात बोल रहे हो ना हाँ आशुतोष? सर। नेगेटिव और पॉजिटिव हाँ बात कर रहा ना। यस सर। जब हम लोग का फैराडे लॉ के बारे में बोलेगा, फैराडे लॉ के बारे में, ये लॉन्ग में जब बात कर रहा है तब हम बोल रहे हैं। जब लॉन्ग में दिया रहेगा कि फैराडे लॉ के बारे में लिखना है, ठीक है, फैराडे लॉ के बारे में बोलेगा, दोनों में से कोई एक ही पूछता है, फैराडे लॉ या लेंज लॉ। कभी मान लो फैराडे लॉ पूछ दिया तो कभी लेंज लॉ पूछ देगा, ठीक है। तो जब फैराडे लॉ बोलेगा तो इस स्टेटमेंट को पूरा को लिखना है फैराडे का, और जब सिर्फ लेंज लॉ के बारे में बोलेगा तो हम लोग तब ये नेगेटिव वाला पार्ट को पकड़ेंगे। समझ में आ रहा हाँ आशुतोष? सर। हाँ आ रहा है सर। ध्यान देने का बात है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फैराडे लॉ और लेंज लॉ, ये डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म के साथ इसको जोड़ेगा, वो पार्ट हमारा शॉर्ट में रहेगा। उसके साथ इसको बोलेगा डिस्क्राइब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे करके दे देगा। तो उस केस में अगर फैराडे लॉ बोलेगा, क्वेश्चन मॉडल सेट हमको लग रहा है कुछ बच्चे को दिए हुए थे जब कॉलेज खुला था, तो अगर देखना उसमें क्वेश्चन मिला तो ठीक है, अभी तो मेरे पास है नहीं, कॉलेज बंद है, ठीक है ना। तो फैराडे लॉ अगर दिया हुआ है तो उस ईयर में लेंज लॉ नहीं पूछेगा, और लेंज लॉ अगर पूछा तो फैराडे लॉ नहीं पूछेगा, दोनों में से एक ही पूछेगा। जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ कोई एक को पूछा जाएगा। यूनिवर्सिटी पूछेगी, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में इसी तरह का ये क्वेश्चन आता था इसी का, और जेयूटी में भी इसी तरह का इससे क्वेश्चन आता है। कोई एक ही लॉ के बारे में पूछेगा, ठीक है आशुतोष? हाँ सर समझ गया। ठीक ठीक। अच्छा, इसके बाद हम अगर कोई लिंक अगर सपोज करो भेजेंगे तो तुम लोग ज्वाइन करो। वो शायद जो है एक क्लास छूटा हुआ था मेरा ट्यूसडे का, ठीक है ना, उसमें अगर तुम सेकेंड हाफ का, ठीक है, तो अगर तुम लोग का क्लास अगर ट्यूसडे को सेकेंड हाफ में रहता है तो उसके बदले जो है लिंक जाएगा। अगर तुम लोग का क्लास रहता है ट्यूसडे को सेकेंड हाफ में, तब 2:10 से 4:40, हम 3:50 तक ले चुके हैं, 3:50 से 4:40 का छूटा हुआ है। तो इसके बाद हो सकता है हम 4:15 या 4:20 में हम लिंक भेजेंगे। कहाँ पढ़ाइएगा सर, उसमें यही पढ़ाइएगा? हाँ बोलो। उसमें भी यही पढ़ाइएगा सेम चैप्टर सर, दूसरा चीज? नहीं 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 नहीं, उस समय दूसरा कुछ जाएंगे, इसको नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें देख बहुत लेंगे स्लो सीएससी पढ़ाइएगा। का, रूटीन में देख लेंगे सीएससी का है कि नहीं। हेलो सर, कितना बजे से लिंक भेजिएगा सर? क्या बोल रहे हैं शिशिर, रिपीट करो। लिंक लिंक कितना बजे भेजिएगा लिंक? लिंक 3:50 में, जो अभी अभी है लिंक के बाद। अच्छा सर, वो एलएमएस बोलो बोलो शिशिर। सर हेमंत सर का क्लास है। हेमंत सर का क्लास है? यस सर। कितना बजे से है? 4:20। 4:20 से है तुम लोगों का? यस सर। ठीक है, तो क्लास नहीं लेंगे आज, उसमें क्या है, ठीक है, ठीक है सर। आज नहीं लेंगे, बस यही लास्ट है। ले लीजिएगा सर, उनको बोल दीजिए कैंसिल करने के लिए। नहीं 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 नहीं, वो हेमंत सर अगर लेंगे तो हम कैसे ले पाएंगे, छोड़ दो, दूसरा दिन ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है चलो। तो ये पार्ट मेरा इंड्यूस्ड करंट यहां से आया। रुक जाओ, I इज इक्वल टू d∅/r/dt, ये पार्ट। अब हम बोल रहे हैं कि सपोज Q बी द इंड्यूस्ड चार्ज, तो I इज इक्वल टू Q/dt। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं 0 to t टाइम में, तो Q इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, I इंटू dt। आप इसी पार्ट को आगे की ओर बढ़ाते गए तो Q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू ये I इंड्यूस्ड करंट है, I का ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे माइनस एन बाई आर डिफाई बाई डी टी इंटू दिस डी टी, ये डी टी, ये पार्ट आया। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा, माइनस एन बाई आर फाइव टू माइनस फाइव वन, ये पार्ट आया। जब अब एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, फैराडे लॉ जैसे जैसे किया था वैसे ही लेंज लॉ किया। लेंज लॉ बोल रहा है E इज इक्वल टू माइनस, अपोज कर रहा है, इसके चलते माइनस डी फाई बाई डी टी, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, डी फाई बाई डी टी मीन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब अगर हम बोल रहे हैं कि फ्लक्स, if flux changes from phi1 to phi2 in t seconds, according to the statement of Faraday law, then induced current will be written as minus n by r d phi by dt, क्योंकि हम लोग इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी जानते हैं, इसलिए ये पार्ट को लिखे। अब बोल रहे हैं कि ये इंड्यूस्ड चार्ज सपोज Q है, Q बी द इंड्यूस्ड चार्ज, सो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू चार्ज का रिस्पेक्ट में Q बाई डी टी, Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू डी टी, तो 0 टू t समय ले रहा है, t सेकंड इट टेक फ्लक्स चेंजेज फ्रॉम phi1 to phi2, it takes time t, so 0 to t टाइम ले रहा है, तो I इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 टू t, I का वैल्यू, हेलो 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 हाँ हेलो